Okay. So I think I have discussed the how to find the range of the quadratic. Right? So now I'm giving question to you. So just solve it. Find the maximum and minimum value of 4x square plus 2x plus 1 equal to 0. ये 4x आपको मैक्सिमम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है. मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लास्ट क्लास. एवरीवन से द आंसर. Anyone got the answer? Shweta, you got the answer? Javier? No, sir, not yet. Sir, is the minimum value 3/4? Yeah, very good. And maximum is plus infinity, right? ऐसे ना ग्राफ लाइक दैट इस तरह से होगा यहाँ ग्राफ. अपवर्ड पैराबोला होगा ना, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि a इज पॉजिटिव सो अपवर्ड पैराबोला. सो अपवर्ड पैराबोला होगा उसमें इसकी इन्फिनिटी. मैक्सिमम वैल्यू इज डायरेक्टली कैन से कि मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? माइनस डी बाई 4a से. सो माइनस डी बाई 4a इट मींस माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. 4 माइनस 16 by 4 into 4, that is minus plus 12 by 16, 3 by 4. Yeah, so minimum value is y minimum is basically 3 by 4 and maximum value is plus infinity. A is positive. If a is positive, then y maximum is infinity plus infinity. If a is negative, then y maximum is minus d by 4. So now if like that, find the maximum value. Let's say question is find the maximum value of 1 upon same quadratic polynomial 4x square plus 2x plus 1. इसका आंसर बता दीजिए. मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया आपसे.
इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए इसका। इसको 1/4x² + 2x + 1। श्रीता आंसर क्या होगा इसका? आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू लेट्स y इज इक्वल टू, तो y मैक्स कब होगा? y मैक्स इज इक्वल टू 1/z मीन मिनिमम। इसको z मान लेते हैं, इसको z। सो z इज इक्वल टू 4x² + 2x + 1। सो z मिनिमम इज इक्वल टू आपका आया है 3/4, राइट? अभी 3/4 आया है, तो सेम आपको y मैक्स डिनोमिनेटर वैल्यू, तो इसलिए हमें चूंकि मैक्स वैल्यू करना है, सो we need to find the z minimum, right? So that's so we get maximum. So y maximum is equal to 1/z minimum, that is 3/4. So 4/3 is the final answer. 4/3 is the final answer. Anyone have any doubt? No, sir. Ashmita, any doubt? x² minus 3x plus 4 upon x² plus 3x plus 4 lie in the interval। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का आपका रेंज फाइंड आउट करना है बेसिकली। x² minus 3x plus 4 upon x² plus 3x plus 4 lie in the interval। आपको बेसिकली रेंज बताना है, कहाँ से कहाँ लाई करेगा। And also given is the for real value of x, for real values of x x रियल के लिए आपको इसको रेंज फाइंड करना है, लाइन लाइन करना इस एक्सप्रेशन का। x² minus 4 3x plus 4 upon x² plus 3x plus 4। Anyone know how to find the range?
Anyone? Numerator by denominator quadratic equation or expression denominator by quadratic. Or if given is x is real, if given is for real value of x or if given x is real, then we need to d greater than equal to 0, right? Real के लिए. So इसको आप मान लीजिए y equal to x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4 का रेंज फाइंड करना, right? We can make the quadratic equation in terms of x square, x and y is the constant. Basically y is the value na, so y is the constant, right? So y x square cross multiply plus 3xy plus 4y is equal to x square minus 3x plus 4. Now make the quadratic equation in terms of x. So now x square is common. Take right hand side into left hand side. So now y minus 1 plus take 3x is common, so get y plus 1. Now plus 4 common, y minus 1 is equal to 0. Now quadratic equation in terms of x. In the question given for real value of x, if x is real, then we can say that d is greater than equal to 0, right? If x is real, then we can say that d is greater than equal to 0. So एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आया, इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कोएफिशिएंट a वैल्यू क्या है, बेसिकली a इज इक्वल टू y माइनस 1. आपका जो अगर कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सो a इक्वल टू आपको दिख रहा होगा y माइनस 1, b इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 1, c इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस 1. सो नाउ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो b square minus 4ac. So 3 times y plus 1 whole square minus 4 into a is value y minus 1 and c value is 4 into y minus 1. This is greater than equal to 0. So now solve it. 9 times y square plus 2y plus 1 minus 16 y square minus 1 greater than equal to 0. So now we got 9y square minus 16y square, get minus 7y square and plus 18y and 9y and minus 6 plus 16y, 25 greater than equal to 0, right? So now multiply with 7, so get 7y square minus 8y minus 25 less than equal to 0. Now you can solve it. The quadratic, आपको बेबी मेथड आता है ना, डू यू नो ना बेबी मेथड, यहाँ से हो जाएगा. Nine y square plus 2y plus 1 minus 16 b square minus 4ac. 16 y square minus 1 minus 7 y square plus 18y 18, sorry, is 18y na, 18y and minus 18y minus 25, 9 plus 25. Now less than 0, so we need to find the y value. Y is equal to, and we apply the Weber method. 18 plus minus, we can the b square minus 4ac, 324 plus 700 upon 14. So 18 plus minus 1024 by 14. So 1024 is the roots of यहाँ के बाद हो जाएगा ना श्रीता? Yes, sir. यू कैन डू ना. वेविक का मेथड, आपको y का 2 वैल्यू आएगा और वो y का 2 वैल्यू को पुट करके आपको प्लस माइनस प्लस, सो a वाला आपका इंटरवल आपका रेंज हो जाएगा, राइट? सो यू कैन डू दैट. नाउ आई एम गिविंग सिमिलर क्वेश्चन to solve it. Question is, if x is real, then find minimum and
maximum value of x 3x square plus 9x plus 17 upon 3x square plus 9x plus 7. बोला गया कि if x is real then find the minimum and maximum value आपको बताना है इस एक्सप्रेशन में. Everyone do that. I think you can do. अब पहला मेथड क्या करेंगे? You can अब do by two method. पहला मेथड जो बताया 3x square plus 9x plus 17 upon 3x square plus 9x plus 7 है. सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए. वहां से आपका आ जाएगा एक मेथड ये है. इस मेथड से हो जाएगा जो अभी मैंने ऊपर से बताया, जो मेथड सेम इक्वेशन जो बताया उसी अप्रोच से आप कर लेंगे तो हो जाएगा. सेकंड थिंग क्या कर सकते हैं इसमें, एनिमल से जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ आपको दिख रहा है इसमें कॉमन, इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है. इसके अलावा अब अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, y 3x स्क्वायर y प्लस 9xy प्लस 7y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17. तो यहाँ से आपका 3x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 प्लस 9x कॉमन ले लिया सो y माइनस 1 प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0. तो इसका आप क्योंकि x इज रियल सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, y का रेंज मिल जाएगा. सेकंड मेथड क्या होगा श्रीता, कैन यू थिंक, सोच के बताइए सेकंड मेथड क्या होगा. कुछ सिमिलरिटी दिख रहा होगा आपको, डिनोमिनेटर नोमिनेटर को देखिए, थोड़ा सा देखिए, चेक कीजिए, कुछ सिमिलरिटी दिख रहा होगा. ठीक है, यहाँ तक एक्सप्रेशन सेम है, ऊपर में बनाया जा सकता है. y इक्वल टू जो आपका एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 ऊपर है. तो मैं ऐसा करता हूँ कि 7 प्लस 10 कर देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7. वाई? क्योंकि मैं अब डिवाइड करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस पार्शियली डिवाइड, इसको ये 1 बन जाएगा. सो 1 प्लस 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7. राइट. अब अभी मैं सबसे पहले इसका रेंज निकालने के लिए बताया ही है, जस्ट 1 अपॉन का रेंज कैसे निकालते हैं. राइट. आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम मैक्सिमम. सो जहां पे मैक्सिमम होगा इस एक्सप्रेशन का वहां पे y मिनिमम आएगा. और तो इसको लेट z इज इक्वल टू मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7. तो z मिनिमम क्या आएगा, z मिनिमम इज इक्वल टू, चूंकि a पॉजिटिव है, a इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो z मिनिमम इज माइनस d बाई 4a. So minus d by 4 मतलब b square minus 4ac. So minus 81 minus 84 by 12. So get plus 3 by 4, 1 by 4. 1 by 4, right? Now z maximum is equal to, इसका maximum value क्या होगा, plus infinity, right? So now y minimum is equal to 1 upon z maximum, right? 1 plus 10 upon z maximum. So 1, z maximum is infinity, so 1 plus 10 by infinity is equal to 1, right? So y maximum is equal to 1 plus 10 upon z minimum. So get 1 plus 10 upon
1 by 4. So get 41 is the y maximum. Clear है? Yes, sir. Okay. Anyone have any doubt? Anyone? Sriyuta, any doubt? Javier? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Okay. So now location of root. Next day we will start the trigonometry. Let Could you want scroll up? case 1. Yeah. Sir, Yeah. could you want scroll up? Solution of question, sir. Can you go down? Yes. यस जैसे आपका यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पोलिनोमियल का, तो यहाँ पे देखिए कि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, तो मैक्सिमम वैल्यू वैसे ही क्लियर हो गया कि प्लस इंफिनिटी होगा। एंड नाउ मिनिमम वैल्यू इज -d/4 है, ये सब मैंने पिछले क्लास में बताया था ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सारी चीजें डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन करा रहा था। तो नाउ ए आपको क्लियर हो गया, -d/4 कर देंगे, मिनिमम आएगा, मैक्सिमम इज प्लस इंफिनिटी। देन इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया 1/4x + 2x + 1 का, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया मतलब इसका अगर नीचे डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू होगा तभी ना मैक्सिमम आएगा, 1/min = मैक्सिमम, राइट। सो 4x² + 2x + 1 का मिनिमम वैल्यू आपने भी फाइंड किया था 3/4, राइट। 1/3/4 दैट इज 4/3 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। इसका मिनिमम पूछा जाएगा तो मिनिमम के लिए 1/z मैक्सिमम, z मैक्सिमम इज प्लस इंफिनिटी, तो इसका 0 आ जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू, राइट। आप देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कभी भी क्वाड्रेटिक या डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कभी भी आपको एक्सप्रेशन देखे पोलिनोमियल और उसको आपको रेंज पूछा जाए और वहां पे क्वेश्चन में एक गिवन जरूर होगा फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, तो आपको समझ जाना है कि क्वाड्रेटिक बनाना है, y इक्वल टू मान लेना जो एक्सप्रेशन है y इक्वल टू, और x में क्वाड्रेटिक बनाना है और d > 0 कर देना, आपका रेंज वैल्यू आ जाएगा। यही यहाँ पे किया हूँ अप्लाई, और इन दिस क्वेश्चन सेम इसमें भी वही का अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, y इक्वल टू मान लिए क्वाड्रेटिक बना लिए x में, और इसका d > 0 करेंगे तो आपको रेंज आ जाएगा। इससे भी आंसर सेम ही आएगा जो मैंने अभी फाइंड किया 1 and 41, सो इससे भी आपका वही आएगा, सेम आएगा। आपको d > 0 करेंगे तो d > 0 करेंगे, इससे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इससे आसान कैसे कर सकते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका हाँ, आईआईटी sir, में got पूछा it. गया, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाउ लोकेशन हाँ, ऑफ sir. रूट्स, ओके, एनी डाउट स्मिता? No, sir. Sir. Okay, okay. So now location of roots. This is a very important topic, location of roots. So case one, if case one, if a number k lies between the roots of the equation ax² plus bx plus c is equal to 0, then we can see इस तरह के ग्राफ हो सकते हैं। बोला है कि k कोई वैल्यू है कांस्टेंट जो कि अल्फा बीटा कोई रूट्स है, अल्फा एंड बीटा इज द रूट्स एंड k lies between अल्फा एंड बीटा, so you can see now कि here is the one case k, let's k is equal to
So if you get f of k, k is the x value, right? So f of k, let's f of x is equal to x square plus bx plus c. So f of k is less than 0, right? F of k less than 0 aega. In this case, f of k is less than 0. We can see, and here we can see a is positive, right? A is, let's a positive का केस में ग्राफ बना रहा हूँ, upward parabola, and d is greater than 0, upward parabola. So d is greater than 0. Why? क्योंकि इसका रूट्स मिल रहा है, रियल रूट्स, so d greater than 0. So केस क्या क्या, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है ग्राफ का? If a is negative, then graph will be the downward parabola, right? Downward parabola, like that. Let's alpha is the root and beta is the real roots. Now we can see, let's k is the in between alpha and beta. So f of k, this is the point, is this is the point, k comma f of k. Now this is the point is, here is the point is k comma f of k. You can see, if अगर हमें general condition लिखना होगा, so condition is, क्या पॉसिबल हो सकता है कि जो k वैल्यू लाइज बिटवीन द रूट्स, तो उसके लिए मुझे पहले नंबर क्या कि रियल रूट्स है तभी तो लाई कर रहे हैं, तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन लगा देंगे कि d इज ग्रेटर देन 0. व्हाई नॉट d नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0? व्हाई मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लिया? कैन एनीवन से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? d ग्रेटर देन 0, व्हाई? एंड सेकंड कंडीशन इज, you can see a times f of k is less than 0 always. a ग्राफ है a less than 0 का, a ग्राफ a greater than equal to 0 का. Can anyone say the why I'm not taking the d greater than equal to 0, only d greater than 0? Sritha? Sritha? Sir, I'm not sure. Okay. So आपको यहाँ पे गिवन है ना कि if a is the number k lies between the roots of the equation. अगर k between the roots है, d greater than 0 में क्या होता है? d greater than d equal to 0 में इस तरह से ग्राफ होता है ना, x एक्सिस पे एक जगह पे दोनों रूट्स एक ही होता है, सेम होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाता है. तो इन दिस केस में तो k तो इनके बीच में आएगा ही नहीं, लाइज करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं लिया, इक्वल टू. ये क्लियर है हुआ? Yes, sir. ये क्लियर हुआ? d ओके. और ये चीज सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन को लगा के आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. ये चीज क्लियर हुआ कि व्हाई सेकंड कंडीशन लगा कि f ऑफ k a टाइम्स f ऑफ k लेस देन 0. देखिए यहाँ पे पहला केस में देखिए अपवर्ड पैराबोला में a पॉजिटिव है, f ऑफ k नेगेटिव है, राइट? इस केस में f ऑफ a नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे a टाइम्स f ऑफ k तो नेगेटिव आएगा. a इज पॉजिटिव, f ऑफ k नेगेटिव, ओवरऑल अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव. इस केस में देखिए सेकंड केस में डाउनवर्ड पैराबोला केस में, डाउनवर्ड केस में a नेगेटिव है, राइट? एंड f ऑफ k जो है आपका वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो a टाइम्स f ऑफ k क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना. तो दोनों का इन जनरल मैं बोल सकता हूँ ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन a पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा. a टाइम्स f ऑफ k लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0. सो कॉमन. अब इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, देन आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए. If you have any doubt, you can ask. No, sir. Javian, any doubt? No, sir. Okay. Now I'm giving question on this topic. One question. Question is, find all value of p. आपका p का वैल्यू बताना है, p का वैल्यू, so that 6 lies between roots of the equation x square plus p minus 3 into x 2 times
plus 9 equal to 0. Anyone got the answer? Sruta, are you doing? Yes, sir. Okay. आपको बस दो कंडीशन लेना है। पहला केस क्या लेंगे, d greater than 0, and second case is a times f of k is less than 0. a तो आपका 1 है तो पॉजिटिव है, f of k less than 0 का दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। दोनों से इनइक्वालिटी आएगा, दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पहला केस में क्या लेंगे, d greater than equal to 0 कर दीजिए, d greater than 0, so 4 times p minus 3 whole square minus 4 times b square minus 4ac, so 9 36, 4 into 9 into 1 is greater than 0, so 4 is cancelled, so p minus 3 square minus 9 greater than 0, so p minus 3 plus 3 and p minus 3 greater than 0, so p into p minus 6 greater than 0. Equality is 6 0 plus minus plus. सो यहाँ से एक आ जाएगा आपका p का वैल्यू, p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। एक आ गया आपके पास। नाउ सेकंड केस ले लीजिए। सेकंड केस f of k is less than 0, इक्वली a times a is 1, so 1 into f of k. f of k is, k value is 6, right? k value is, because given is 6 lies between the roots of the equation. ग्राफ इस तरह का होगा, इस तरह का। 6 जो है वो a लेट अल्फा है एंड बीटा है, 6 a है, सो नाउ 6 f of 6 is less than 0, so 6 f of 6 is less than 0. 6 का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दीजिए एक्सप्रेशन में, so x square, so 36 plus 2 times p minus 3 into 6, p minus 3 into 6 plus 9 less than 0. So now 36 plus 12 into p minus 3 plus 9
लेस देन 0, 9 3 कॉमन लीजिए, 12 प्लस 4 टाइम्स p माइनस 3 प्लस 3 इज लेस देन 0, 15 प्लस 4p minus 12 less than 0, 4p plus 3 is less than 0, p is less than minus 3 by 4. So दोनों का फाइनल आंसर इज दोनों का इंटरसेक्शन, बहुत इनइक्वालिटी का, ए इनइक्वालिटी एंड ए इनइक्वालिटी। ये क्या बोल रहा है? सो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? नंबर लाइन बना लीजिए, आपका है पॉइंट है 6 0 माइनस 3 बाई 4। एक केस आपका बोला जा रहा है कि ये बोल रहा है कि माइनस 3 बाई 4 से इंफिनिटी, एंड ये आपका है केस ए, पहला केस से क्या है कि माइनस इंफिनिटी से 0 एंड 6 टू इंफिनिटी। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन इज ए, यहाँ से आपका इंटरसेक्शन है, राइट? दोनों इनइक्वालिटी यहाँ से आपका इंटरसेक्शन है। So now final answer is E belongs to minus infinity to minus 3 by 4. Minus infinity to minus 3 by 4. This is the final answer. So the answer will be, it has to be extending to minus infinity, right? Plus infinity नहीं होगा. Plus infinity हुआ? It won't be मैंने plus. P का वैल्यू पूछा हो ना? हुआ? P P का का वैल्यू वैल्यू 6 या से इंफिनिटी नहीं होगा. 6 इंफिनिटी हुआ? नॉट 6 टू इंफिनिटी, या नहीं 6 टू नहीं, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन होगा ना, तो इंटरसेक्शन में रेड एंड ब्लू दोनों का इंटरसेक्शन, तो रेड ब्लू नहीं है 6 इंफिनिटी में, ब्लू एंड रेड का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए माइनस 3 से ए, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 बाई 4 एक है आपका इनइक्वालिटी। देखिए ए आपका इनइक्वालिटी जो 2 है वो ए है, और फर्स्ट इनइक्वालिटी ए है आपका, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। माइनस इंफिनिटी से 0 एंड 6 इंफिनिटी, एक इनइक्वालिटी है, एक इनइक्वालिटी है माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 बाई 4, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? देखिए ब्लू एंड रेड कहाँ पे मैच कर रहा है? इधर माइनस 3 बाई 4 से इन्फिनिटी, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 बाई 4 दोनों कॉमन है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ब्लू लाइन इधर भी होता तब ना इनइक्वालिटी 2 लाई नहीं कर रहा तो इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। यहाँ से आपका इधर ये आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 बाई 4। क्लियर है अस्मिता? Yes. क्लियर है? Yes, sir. So either intersection होगा, that's why it's equality. प्लीज से वन सेकेंड। श्रीता एनी डाउट? बस आपको ये दो केस याद रखना है, सिंपल क्या है कि d ग्रेटर देन 0 एंड a टाइम्स f ऑफ k लेस देन 0 करना है, दोनों से इनइक्वालिटी आएगा, दोनों इक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड केस, केस 2 if a number k is a smaller than the roots of the quadratic equation on ax square plus bx plus c equal to 0। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो k कांस्टेंट वैल्यू है वो रूट्स अल्फा एंड बीटा से लेस है। मतलब है कि इसमें कंडीशन क्या क्या होगा? कंडीशन, कैन एनीवन थिंक कौन कौन सा कंडीशन आप अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? कि जो k वैल्यू, कोई k कांस्टेंट है वो रूट्स अल्फा और बीटा से लेस देन है, स्मॉलर वैल्यू है, तो क्या क्या कंडीशन होगा? तो देखिए पहला कंडीशन होगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन होगा a टाइम्स f ऑफ k
is greater than 0, a times f of k is greater than 0, and now third condition हो जाएगा कि k is less than minus b by 2. तीनों कंडीशन को 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं ग्राफ से. क्यों 3 कंडीशन आएगा? See the graph. पहला केस ले रहा हूं कि if a is positive, a पॉजिटिव होगा तो रूट्स यहाँ पे अल्फा बीटा मिलेगा आपको, अल्फा बीटा. और एक केस ये भी हो सकता है कि रूट्स इक्वल हो, d ग्रेटर देन 0 हो, d इक्वल टू 0. इन दिस केस भी पॉसिबल है. ए डी इक्वल टू 0 का है और ए आपका जो ग्राफ है बेसिकली d ग्रेटर देन 0 का है. इसमें यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा मिला, दोनों इक्वल है d इक्वल टू 0 पे. नाउ मैंने क्या बोला हूँ कि जो आपका k वैल्यू है वो बेसिकली अल्फा और बीटा से स्मॉलर है. तो लेट्स k इज हियर. मैं मान के चलो एक्स एक्सिस है तो k इज हियर. सो k के करस्पॉन्डिंग f ऑफ k आएगा. f ऑफ x इक्वल टू आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. So we can see f of k is greater than 0 in this case, and a is also greater than 0 upward parabola k. So we can say ना कि a times f of k is greater than 0 and d greater than equal to 0, क्योंकि रूट्स है, रियल रूट्स है, तभी तो कट करेगा एक्स एक्सिस को. सो रियल रूट्स के लिए d greater than equal to 0 और a times f of k. दो कंडीशन समझ में आ गया. अब देखिए थर्ड कंडीशन में क्यों लिखा हूँ k is less than minus b by 2a. आप यहाँ पे लिखते हैं ना टेंजेंट, यहाँ पे निकालते हैं माइनस बी बाई 2 वर्टेक्स लिखते हैं माइनस बी बाई 2 माइनस डी बाई 4 है. एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाई 2 है. तो हमेशा जो के वैल्यू होगा वो माइनस बी बाई 2 से तो स्मॉलर होगा. तो यही मैंने लिखा हूँ कि के इज लेस देन माइनस बी बाई 2. ये तीनों कंडीशन लेना है आपको और इंटरसेक्शन. सेम ग्राफ आपका डाउनवर्ड पैराबोला का बना लीजिए. डाउनवर्ड पैराबोला का डी इज इस तरह से हो सकता है एक, और यहाँ पे रूट्स अल्फा बीटा मिल रहा होगा, और एक डी इक्वल टू 0 पे, डी इक्वल टू 0 पे इस तरह का ग्राफ हो सकता है. ये डी इक्वल टू 0 का है, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा, डी इक्वल टू 0. ये है डी ग्रेटर देन 0. तो कंबाइंड इक्वेशन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला, एंड ए आपका लेस देन 0 है, डाउनवर्ड पैराबोला है. तो सो एंड क्या बोला गया, के लेट्स के इज हियर. So now corresponding f of k is less than 0, you can see, and a is also less than 0. So we can say ना कि a times f of k is greater than 0. A is negative also and f of k is negative. So overall positive. If you multiply a times f of k greater than 0, and here is point is minus b by vertex is minus b by 2a minus d by 4a. So we can say ना कि minus k is less than minus b by 2a. तो दोनों के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए तीनों कंडीशन लेना है आपको सेम. अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड, ए डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए टाइम्स एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, एंड के इज लेस देन माइनस बी बाय 2a. एक चीज समझ में आया? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन? No, sir. Javier, any doubt? No, sir. Okay, Ashmita, any doubt? No, sir. Okay. So I think I need to end the meeting because I could also discharge. We will continue the next class. I hope quadratic equation 20 to 15 मिनट में ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, and then we will start the trigonometry. Okay. So if you have any doubt, you can ask. Otherwise, I will end the meeting. No doubt, sir. Okay. So thank you. Bye. Good night. Thank you, sir. Welcome.